السلام علیکم. آواز نہیں ہے. السلام علیکم. سارے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز و محترم بڑے بھائی میاں عبدل صاحب، پرنسپل ادارہ حاضہ مین سمرہ، پورا سٹاف، خصوصاً بالخصوص میرے ملک پاکستان کے مستقبل معمار، میری تمام تر امیدوں کے محور و مرکز میرے سامنے موجود میرے نونہالو. دل تو چاہتا تھا کہ سارا پروگرام آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنوں، آپ کے ساتھ رہوں، لیکن یہاں غریب اللہ کے قریب آپ کو معلوم ہے براڈ اور وہاں سے کشمیر کا آغاز ہوتا ہے. تو وہاں ہمارے کشمیر کے بھائیوں نے اور ہمارے غریب اللہ کے نوجوانوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے اور ان کا یہ حکم ہے کہ آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد بالاکوٹ کے اندر ایک پروگرام ہے، اس میں جانا ہے. اور رات گزشتہ 12 بجے اسی طرح آپ بچوں نے ختم روز چوک کے اندر پروگرام کیا تھا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہوا. 13 جیسے 7 بجے انہوں نے شروع کیا اور رات کے 12 بجے اور 14 اگست کا جیسے آغاز ہوا تو وہاں پر بچوں کا پروگرام تھا، اس میں بھی ہم شریک تھے. آپ کو یہاں پہ سنا، آپ کی یہاں پہ ایکٹیویٹی کو دیکھا اور آج ملک عزیز کے اس سبز ہلالی پرچم کے جھنڈوں کے اندر اور کسی نے بیج لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، سب بچے جس طرح تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے زمین پہ ایک جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں. میرے بچوں، پاکستان ہمارے لیے ایمان کی طرح ہے. اگر ہم پاکستان سے محبت میں خلل لائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہم اپنے ایمان کے اندر خلل لائیں. جس طرح یہ اس بچے نے یہاں پہ ایک خاکہ اپنے یہاں پہ پیش کیا کہ اس نوجوان کے وجودی کو پاکستان ظاہر کیا گیا، وہ 4 5 6 منٹ کے اندر 70 سالہ کہانی ہمارے سامنے رکھ کے چلا گیا. بنتے وقت آپ دیکھیں کہ جب یہ نعرہ لگایا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اس نعرے کی بنیاد پہ، اس نعرے پہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی. اگر اس قربانیوں کے تسلسل کو اٹھا کے رکھ جائیں تو وقت بھی کم ہے، بیان کرنے سے زبان بھی قاصر ہے. وہ جو قربانی دیتا ہے، جو قربان ہوتا ہے، اس کے گھر میں پتہ ہوتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ ہم کیا کر کے آگے. ماں نے اپنے بچے پیش کیے، بہنوں نے اپنے بھائی پیش کیے اور جوان بھائیوں کے سامنے ان کی بہنیں قربان ہوئیں. یہ ایسے پاکستان حاصل نہیں ہوا. تحریک پاکستان، وہ یہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، جس مٹی سے ہمارا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے بالاکوٹ کے اندر دفن ہے. وہ اسی تحریک پاکستان کے پہلے مسجد تھے، انہوں نے قربانیاں دی. اس قافلے کے ایک مجاہد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی جب بچے یہاں پہ پیش کر رہے تھے میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ شاہ اسماعیل شہید کے قافلے کا ایک مجاہد تھا. وہ جس طرح پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، جس طرح آپ کی فوج ہوتی ہے، آپ ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو مٹی بناتے ہیں اس ملک کی خدمت کے لیے، اپنی پہچان نہیں کرواتے. پتہ چلا کہ فلاں کمانڈر ہے شاہ اسماعیل شہید کا، فلاں راستے سے سفر کر کے شاہ صاحب کے پاس کچھ رپورٹ لے کے آ رہا ہے، انہیں کچھ بتانے کے لیے آ رہا ہے. یہ پاکستان کا اصول ایسے ممکن نہیں ہوا. جب اس ہمارے کمانڈر کو، اس مجاہد کو خبر ہوتی ہے کہ انگریز کو
सिख को यहाँ से गुजरने की मेरी आमद का पता चल गया है, तो वो अपने दोस्तों को कहता है पता है कि मेरी 2 आंखें हैं? कहते हैं जी बिल्कुल, उनके पास जो आपका चेहरा गया है, चेहरे के खुदखाल गए, उनमें 2 आंखें हैं आपकी। उनको मेरे नाक का पता है, मेरे हाथों का पता है, बिल्कुल पता है। जेब से खंजर निकालता है, अपनी एक आंख निकाल के हथेली पे रख के फेंक देता है, कहते हैं अब मैं गुजर जाऊंगा, मेरी आंख चली जाए तो चली जाए पर ये मेरा राज ना चले। मैंने जाके शाह साहब के सामने ये राज ज़ाहिर करना है। आप देखे एक अंग्रेज मुसन्नफ है, वो कहता है कि जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बट रहा था, तो सुबह के वक्त हम एक वादी के ऊपर से गुजरे, वहां पे घर थे, मकानात थे, खुशियों का मंजर पेश कर रहे थे, आबाद थे। कहता है कि दूसरे दिन शाम को गुजरे तो सब कुछ मलिया मेट था। एक वो जो मुहाजिरीन वहां से निकल के आए थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ, लाखों कुर्बानियां दे के आए थे। उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करेंगे जहां पे करप्शन होगी, जहां पे बदयांती होगी, जो मेरे बच्चों को कत्ल कर दे। आप ही के इदारे का प्रोग्राम था, आपके इल्म में छोटा बच्चा जिसने तकमील पाकिस्तान पे स्पीच की थी, आशम आपके साथ था, आपके साथ खेलने कूदने वाले था, आपके साथ बैठने वाला था, आपकी क्लास में से था, आपसे पढ़ा था वो बच्चा। मैंने आज रात को भी इसका तज़किरा किया खत्म नबूवत चौक के अंदर कि वो बच्चा आज कहां है। हमने अपनी नस्ल को बचाना है शरपसंदों से। हम इनको बचाएंगे तो तब मेरा पाकिस्तान महफूज होगा। पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है, फिर पाकिस्तान इस कलमे तैयबा के ऊपर हासिल किया गया, जो इस नजरिए की बुनियाद पर, इस विजन की बुनियाद पर, इस सोच की बुनियाद पर हासिल किए गए, इस मुल्क का नाम है। लेकिन ये मुल्क तो आप नौजवानों की वजह से है, ये आपके लिए है। आप आबाद हैं, आप खुश हैं, तो ये रियासत फलाह की तरफ जाएगी, ये तरक्की की तरफ जाएगी, ये कामरानी की तरफ जाएगी। तो हमने अपने इन बच्चों को संवारना भी है, इनको समझाना भी है, इनकी तरबियत भी करनी है, और सबसे मुश्किल काम जो है हमने इनकी हिफाजत करनी है। इनकी हिफाजत कैसे करनी है? देखिए आज वालिदैन नहीं है, जब ये इस प्रोग्राम के अंदर वालिदैन थे तो मेरी तकरीर या गुफ्तगू वालिदैन से होती थी, मैं उन्हें मुखातिब करता था। अब यहाँ पे साथिया कराम आप मौजूद हैं, फिर मेरी गुफ्तगू आपसे होगी। ये जो आपका पेशा है, जिस पेशे से आपका तल्लुक है, शायद दुनियावी लिहाज से आपको ज्यादा इसकी सैलरी नहीं मिलती हो, दुनियावी मालो असबाब के लिहाज से कोई आपका शानदार पैकेज ना हो, लेकिन ये बात याद रखें, आप जो इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप एक बेहतरीन पैकेज का अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। कल को यही बच्चे यहाँ से इस इदारे से बन के निकले, इनका मुस्तकबल बनेगा, मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबल बनेगा। हमें नहीं पता कौन कहां किस कोने के अंदर किस कब्र के अंदर लेटा होगा, लेकिन इन बच्चों पर आपने तरबियत की होगी। जिस तरह बच्चा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता है, अजर वालिदैन को की कब्र के अंदर मिलता है, इसी तरह इसातिज़ा इकराम को मिलता है। ये जो इसातिज़ा इकराम है, एक सुन्नत होती है जैसे किसी बड़े की, जैसे हमारे प्यारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु की सुनते हैं, इसी तरह एक सुन्नत मेरे रब की है। इसातिज़ा का पेशा खुद अल्लाह की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। मेरे रब ने अंबिया को सिखाया, अंबिया ने आगे कौमों को सिखाया, कौमें बनाई, और आज हमारे सामने हमारे ये बच्चे हैं, हमारा ये नौनिहाल है, इन्हें हमने बनाना है, इन्हें हमने संवारना है। वक्त तो गुजर जाता है, ये दुनिया किसी ने ठीक कहा एक मच्छर के पर की बराबर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप देखें कि ये आने में तो एक तरतीब होती है, बाप आता है, बेटा आता है, बच्चे आते हैं। अब देखें बाप भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, उसकी बड़ी बहनें भी मौजूद है, पर वो छोटा बच्चा नहीं है, जाने की कोई तरतीब तो नहीं है। हमने अपने इन बच्चों को इनकी तरबियत करनी है, इन्हें नेक बनाने का बताना भी है और नेकी फैलाने की तलकीन भी करनी है। तो बच्चों आप नेक बनेंगे, नेकी फैलाएंगे,
हाथ खड़ा करें जरा। नेक बनेंगे, नेकी फैलाएंगे आप? सबके हाथ खड़े नहीं है। नेक बनेंगे, नेकी फैलाएंगे, अपना होमवर्क बाकायदगी से करेंगे, अपने टीचर का एहतराम करेंगे, अपने टीचर की बताई हुई बात पे अमल करेंगे। अगर आप अपने टीचर की बात पे अमल करेंगे, अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, तो याद रखें बात ये कमाल की है। जैसे वो बच्चे कह रहे थे, अभी स्पीच के अंदर भी कह रहे थे, टेबलों के अंदर भी कह रहे थे, पिछले 70 सालों से नकारा लोगों ने, कमजोर लोगों ने, बदयानत लोगों ने, मेहनत का कितलियाम करने वाले लोगों ने हमारे पाकिस्तान को लहूलुहान करके रख दिया है, खा खा के खोखला कर दिया है। अगर तुम भी इस तरह तैयार होगे जिस तरह वो तैयार हुए, ये कोई कमाल की बात नहीं है। तुम सच पे तैयार होगे, तुम इंसाफ पे तैयार होगे, तुम अमन पे तैयार होगे, तुम अखमत पे तैयार होगे, तुम एक दूसरे के एहतराम पे तैयार होगे, तुम उस मुआशरे की बुनियाद रखोगे जिस मुआशरे की बुनियाद रखने की तरकीब हमें तैयार मदीना ने की थी। तो याद रखना पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। याद रखना पाकिस्तान रहती दुनिया के लिए नाकाबिले तस्वीर बन जाएगा। आज हमारे पास एटम बम है, पर हमारे गले के अंदर ये कशकोल है। हम मांगने के लिए जाते हैं, हम देने के लिए नहीं जाते। ये वो कायदे-ए-आज़म ने जो मुल्क हासिल किया था, पढ़े उसकी हिस्ट्री उठा के, फिर बच्चों को भी पढ़ाएं कि जिसने अपनी बीमारी को छुपाया था पाकिस्तान बनाने के लिए। टीबी का मरीज था, अपने डॉक्टर को कहा जो इलाज तुम कर सकते हो तुम करो, किसी और को ना बताना कि मैं टीबी का मरीज हूं। अगर ये पता चला तो वो लेट कर देंगे, और जब मैं रुखसत हुआ तो पाकिस्तान बन न सकेगा। जिस्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, उसने यकीन के साथ हमें बता दिया, लेकिन वो उस पाकिस्तान को देखने से पहले दुनिया से चले गए। जो लियाकत अली खान, जो पहला वज़ीर-ए-आज़म, अपनी जागीरें छोड़ के गया, अपने सरमाया हिंदुस्तान में छोड़ा, जो सूट एक दफा पहनता था दोबारा नहीं पहनता था, नवाब था, उस वक्त कैमरों ऑक्सफोर्ड के अंदर पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान में आया तो सब कुछ छोड़ के आया। मेहमान आए हुए थे घर, चाय फीकी दे दी, तो पूछा फीकी क्यों? तो घर उनसे जो उनकी एहलिया थी उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म को चीनी मिलती उसका कोटा खत्म हो गया। उसने करप्शन करके नहीं, चीनी नहीं मंगवाई। जब पीढ़ी के अंदर उसके सीने पे गोली लगती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जनाजे को गुस्ल दिया जाता है, जो नीचे बनीन पहनी होती है फटी होती है। ये मुल्क अमानतदारी ने हासिल किया था, इसको बनाने के अंदर उन्होंने किरदार अदा किया। मलेशिया में जाएं, इंडोनेशिया में जाएं, सऊदी अरब उस वक्त उठा के देख लें, वो हमसे सीखने के लिए आते थे। PIA को देखकर दुनिया की एयरलाइनें बनी थी, हमारी फौज को देखकर, हमारे इदारों को देखकर, हमारे लोगों की मेहनतों को देख के बने थे। याद रखना, मेहनत करोगे इकबाल की सूरत में जिंदा रहोगे, कायदे-ए-आज़म की सूरत में जिंदा रहोगे। बाकी ये जो चोर हैं, ये जो नकारा लोग हैं, ये जिंदा है, लेकिन दुनिया बहुत फितरत करती है। अल्लाह करे ये गर्क हो जाए, हमारा पाकिस्तान से बच जाए। अब कौन से बनने, जिन्हें दुआएं दे देते हैं वो बनने होंगे, या चोर और नकारा बनना है? अगर आप बाकायदगी से काम करेंगे, आप अपने आप को अपनी किताब से जोड़ेंगे, अपना तल्लुक कुरान पाक से जोड़ेंगे, अपने इदारे से अपने आप को जोड़ के रखेंगे, फिर तो आप कायदे-ए-आज़म के रास्ते पे जाएंगे। अगर आप सुस्ती से काम लेंगे, आप अपना होमवर्क बाकायदगी से नहीं करके आएंगे, तो फिर आप कायदे-ए-आज़म के बजाय आप उनके रास्ते पे जाएंगे कि जिन्होंने आपके मुल्क को खोखला किया हुआ है, जो आपके मुल्क को लूट के खा गए, जो अपनी नस्लों के लिए 7-8 नस्लों के लिए शेष दिन को देख लें, वो बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जगह जगह के अंदर उन्होंने अपने महल बना दिए। उनके बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आपके साथ उनके बच्चे पढ़ते भी नहीं है। वो जब आते हैं तो महसूस भी नहीं होता ये हमारे पाकिस्तान का बच्चा है। आपने अपने इलाके को आप अगर तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, अपने घर को फलाह की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर आपने अपने साथ इकराम की
عزت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اسی دی ہوئی ڈائریکشن پر عمل کرنا ہے. ایسا کریں گے آپ؟ اچھا میں نعرہ لگاؤں گا 2-3 دفعہ لگاؤں گا پر لا الہ الا اللہ کا جواب صحیح جوش اور ولولے سے ساتھ آنا چاہیے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی 70 سال ہو گئے جو ہم سے تو دور چلے گئے قربان ہو گئے لیکن جیسے وہ